Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter. Plants are everywhere. The world is full of plants. They live and grow in different surroundings. Some plants grow in water while others grow on land. Some plants grow at cold places, others grow in hot deserts. The place where they are found is called their habitat. There are around 3,80,000 types of plants known today. They can be divided into two main types, aquatic or water plants and terrestrial or land plants. देखिए प्लांट्स आपके हर जगह पाए जाते हैं. ये आपके लैंड में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, ये हॉट डेजर्ट में भी आपको मिलेंगे एंड कोल्ड प्लेसेस में भी आपको मिलते हैं. तो जिस प्लेस पे आपके प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उनका हैबिटेट. तो आपको पता है वर्ल्ड में कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं? सी दिस नंबर. इतने टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं और इनको बेसिकली दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक्वेटिक या फिर वाटर प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. Plants growing in water are called aquatic plants. The first plants which appeared on earth were the water plants over 3 billion years ago. These plants are of three types: free floating, fixed floating and underwater plants. अच्छा देखिए, जो प्लांट्स आपके वाटर में होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं. इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है. ये थ्री टाइप्स के होते हैं आपके. ओके, सो नंबर 1 इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. Aquatic plants floating on the surface of water are called free floating plants. As their roots are not fixed in the soil at the bottom of water, they float as they are small, light and spongy. Water hyacinth, duckweed and water chestnut are examples of free floating plants. अच्छा देखिए, आपके जो aquatic plants हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट जो करते हैं उन्हें कहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. इनकी जो रूट्स होती है ये फिक्स नहीं होती आपकी वाटर के बॉटम पे, तो इसीलिए फ्लोट करते हैं. राइट, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके. नेक्स्ट है फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बेड ऑफ द पॉन्ड बाय लॉन्ग hollow stem and deep roots. Their broad leaves float on the surface of water. Leaf stalks are spongy and filled with air. Leaves have tiny pores, stomata, only on the upper surface for respiration. Water lily and lotus are examples of fixed floating plants. तो जैसे इनके नाम से ये पता चल रहा है कि फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो आपकी फिक्स्ड होती हैं. ये आपके पॉन्ड के बेड पे फिक्स्ड होती हैं. राइट, इनकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी ब्रॉड होती हैं जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती हैं. लीफ स्टॉक्स इनके स्पॉन्जी होते हैं और एयर से फिल्ड होते हैं. तो इनमें जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के अपर सरफेस पे होता है जिससे कि वो रेस्पायर कर पाते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके वाटर लिली एंड लोटस. Next, underwater plants. Underwater plants are fixed water plants. They are completely immersed in water. They have narrow ribbon-like leaves but no pores. They breathe dissolved air by the entire body surface to also help to keep the water clean. That is why they are grown in an aquarium. Pondweed, tape grass and hydrilla are underwater plants. अब underwater plants आपके water plants ये fixed होते हैं. Right? ये completely आपके water में immersed होते हैं. इनकी narrow ribbon-like लीव्स होती हैं जिसमें कोई पोर्स नहीं होता. यानी कि ये कैसे फिर ब्रीथ करते हैं? ये जो डिजॉल्व्ड एयर होती है वाटर में उस पर ब्रीथ करते हैं. इनका जो पूरा बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ये वाटर को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. इसीलिए इन्हें एक्वेरियम में ग्रो किया जाता है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पॉन्डवीड, टेप ग्रास एंड हाइड्रेला. नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्लांट्स की वो है टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. All plants growing on land are called terrestrial plants. Majority of plants grow on land. Largest living being on earth is also a land planet, the giant sequoia tree found in California, USA. It reaches up to a height of 83 meters. The diameter of its trunk is 24 meters. It is also known as General Sherman. Land plants are of the following types. अब जो आपके plants land पे होते हैं वो terrestrial plants हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स हैं आपके वो लैंड पे ग्रो करते हैं. राइट, एंड इवन आपको पता है जो लार्जेस्ट लिविंग बीइंग है अर्थ का वो भी एक लैंड प्लांट है जो है आपका जाइंट सीक्वा ट्री जो आपका पाया जाता है कैलिफोर्निया यूएसए में. इसकी हाइट है 83 मीटर्स एंड डायमीटर है इसकी ट्रंक का 24 मीटर्स. अब देखिए जो लैंड प्लांट्स हैं उनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1 है कॉमन लैंड प्लांट्स.
Plains have a large variety of plants including trees. They survive hot summer and cold winter conditions. People, mango, banyan, shisham, etc. are big trees. These trees have a large number of branches and a well-developed root system. Sunflower, mustard, wheat, rice, etc. are common small land plants. प्लेन्स में आपके बहुत तरह की प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है. इसमें आपके ट्रीज भी इंक्लूडेड है. ये हॉट समर एंड जो विंटर कंडीशंस हैं उसमें इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. तो कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं ट्री के, राइट. अब इन ट्रीज में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं और एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है. सी कोस्ट प्लांट्स. Coconut, palm and pepper grow in hot and moist place like sea coast. Teak, rubber and sugarcane are also such plants. Mangrove plants like Rhizophora grow in swamps where water is plenty. The soil in swamps is clay and does not have air. As the roots cannot breathe, they grow above the ground. अच्छा देखिए, कोकोनट, पाम या जो पेपर है ये आपकी हॉट और मॉइस्ट प्लेसेस में होता है, जैसे कि सी कोस्ट. और इसके अलावा आपके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि टीक है, रबर है, शुगर केन, ये भी ऐसे ही प्लांट्स हैं. मैनग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा ये आपके स्वॉम्प्स में ग्रो करता है जहाँ पे वाटर भरपूर मात्रा में होता है. और जो सॉइल होती है स्वॉम्प्स की वो क्ले होती है और उसमें एयर नहीं होता, तो क्योंकि रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाते हैं तो ये ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं. हिल प्लांट्स. Tea plants are grown on hill slopes because they need plenty of water. They cannot bear standing water near their roots. In India, tea plantations are found in hilly regions of Assam and Darjeeling. Other common plants in hills are conifers or pines. They have needle-like leaves. They have cones instead of flowers. Seeds develop in these cones. They can bear the cold and heavy rains of the hills. Cedar, fir and pine are such trees. अच्छा, तो ये hilly plants में कैसे आपके हिली प्लांट्स होते हैं. जैसे टी प्लांट्स आपके हिल स्लोप्स में ग्रो किए जाते हैं क्योंकि उनको प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये स्टैंडिंग वाटर को बेयर नहीं कर पाते हैं अपने रूट्स के पास. तो इंडिया में जैसे आपका जो टी प्लांटेशन होता है ये आपका हिली रीजन्स में होता है, असम एंड दार्जिलिंग में. बाकी जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं आपके वो हैं आपके, इनमें क्या होती है कि नीडल लाइक लीव्स होती हैं और इनमें फ्लावर्स की जगह कोन्स होते हैं और इन कोन्स में सीड्स डेवलप करते हैं. ये कोल्ड और हेवी रेन जो हिल्स में होती है ये उसमें सर्वाइव कर पाते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके. Spruce tree has a straight trunk and hard branches. It is used as Christmas tree. Fruit trees like walnut and almond also grow on hills. Spruce tree जो है आपका वो straight trunk होती है इसकी और hard branches होती हैं. इसको एज अ क्रिसमस ट्री यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो आपके वॉलनट या आमंड, ये जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं ये भी आपके हिल्स में होते हैं. नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट्स. Deserts are plants with scanty rainfall, so plants growing here do not bear leaves so as to prevent the loss of water. Green fleshy stem prepares and stores food for the plant. Cactus and prickly pear are example of desert plants. देखिए, डेजर्ट प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आपकी स्केंटी रेनफॉल होती है. स्केंटी यानी बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, सो इसीलिए उन पे क्या होता है कि लीव्स नहीं होते हैं ताकि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सकें. इनकी इंस्टेड ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है जो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं और वहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि कैक्टस या प्रिकली पेयर. ये आपके डेजर्ट प्लांट्स हैं. नेक्स्ट, पैरासिटिक प्लांट्स. Plants like mushrooms and molds do not have chlorophyll. Therefore, they cannot prepare their own food. They obtain their food from other plants or decaying matter, so they are called parasitic plants. अब जैसे हम मशरूम एंड मोल्ड्स की बात करें, मशरूम्स आपने आई एम श्योर खाया भी होगा, तो ये नॉन ग्रेन प्लांट्स होते हैं. इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो ये अपना खाना किसी डेड और डिकेइंग मैटर्स से लेते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट. Insectivorous plants. These plants trap and eat smaller animals like insects that visit them occasionally. Every leaf of Venus flytrap has two folding halves. When an insect sits on it, the two halves fold, press and absorb the insect. Leaf ends of a pitcher plant are shaped like a pitcher and it's slit. When any insect goes inside it, the lid closes. देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको ट्रैप करते हैं. पहले हर लीफ, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें
तो इसकी जो लीफ होती है इसमें 2 फोल्डिंग्स होते हैं, मतलब हाफ, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, राइट। तो जैसे ही इंसेक्ट इसकी लीफ में बैठता है तो उसकी जो लीफ है वो फोल्ड हो जाती है और फिर उस इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी तरह से आपका जो पिक्चर प्लांट है, दिस वन, इसकी शेप पिक्चर के जैसी होती है, यानी मटके के जैसे होते हैं। तो जब कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर जाता है ओकेजनली, तो जो लिड है इसकी वो क्लोज हो जाती है। की पॉइंट्स: plants live and grow in different surroundings. Plants that grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants may be free floating, fixed floating, or underwater. Plants that grow on the land are called terrestrial or land plants. Land plants are found on plains, sea coast, hills, and deserts. Non-green plants are called parasitic. Remember that insectivorous plants eat insects. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करें।